Across India, a health movement is taking shape. Eat right! Redefining how people relate to food. घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस. It has a simple philosophy. If it's not safe, it's not food. If it's not healthy, it's not food. And if it's not good for the planet, it's not food. India is now the diabetes capital of the world, in addition to high undernutrition and deficiencies such as anemia. With heart ailments and other non-communicable diseases steadily on the rise, managing diets and lifestyle is now critical. To address the mounting crisis, the Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, is taking the lead by launching Eat Right India. FSSAI continues to set and enforce food safety standards, but its role has evolved from a regulator to enabler as well. Its new approach integrates safety, health, nutrition, and the environment more consciously and visibly. But molding the food habits and lifestyles of 1.3 billion people across countless cuisines and cultures can't be done by FSSAI alone. So, it's taken every possible stakeholder along: citizens, artists, restaurants, media, food producers, corporates, and development agencies. For behavior change to occur at a mass level, it can't be imposed. It has to come from within. इतना खाता हूँ तब भी कमी. संपूर्ण पोषण की. Understanding this, the campaign features a new language and user-friendly symbols to nudge people. चाय में चीनी लेते हैं? यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए. और कुछ दिन बाद समझ गया ना? Eat Right India encourages every collaborator to be a leader. Food producers are reformulating products, providing better nutritional information, and investing in healthy food. Thousands of professionals are committing themselves to ensuring that people eat right. So we try and take those street food snacks and make it a bit more lighter, less in fats, less in calories, but absolutely delicious. Over 200 places of worship have collaborated to design Bhog, a scheme for blissful hygienic offering to God. गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके इसको आगे पढ़ने से हमारा फूड को क्वालिटी मेंटेन होगा. It will definitely help us improve the standards of the kitchen. ये हर जगह पूरे बॉम्बे नहीं, पूरे महाराष्ट्र, पूरे इंडिया में होने चाहिए. Oil companies under the Petroleum Ministry are rolling out RUCO, a system for converting used cooking oil to biodiesel. To sustain a movement, constant innovations are needed. And so, clean fruit and vegetable markets and clean street food hubs are being created. Eat Right campuses are becoming mini ecosystems where healthier food choices are being made and offered on menus. State-of-the-art food testing laboratories are being established, and campaigns to minimize food and plastic waste are being rolled out. Plastic recycling is the need of the hour. We are in a situation where we need to act right now. To strengthen behavior change, online Eat Right platforms are being used to train frontline health workers. And IEC creations like an Eat Right merchandise store and a fun quiz complete Eat Right India's 360-degree approach. Decades ago, the Indian freedom movement was launched by Mahatma Gandhi, a figure deeply respected for his commitment to healthy eating and living. Eat Right India hopes to ignite a similar mass movement for health. The Swasth Bharat Yatra, a pan-India cyclothon, was a crucial awareness campaign to inspire citizens to take charge of their own diet and health. महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इसी कड़ी में FSSAI ईट राइट इंडिया अभियान के अंदर खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने में जुटा है. Changing food and lifestyles on such a grand scale can feel daunting. But stakeholders at every level are gearing up to drive this movement. The states are ready to take the torch that has been lit with the movement. Their leadership will be crucial to success at the national level. The dream is that Eat Right's message will resonate with everyone in the country
and indeed across the globe. Eat right for a better life. Well, welcome to Schools. Schools is the EdTech startup that is recognized by the Government of India, helping schools, training institutes, and trainers meet verified and genuinely interested parents. Schools helps parents in searching, exploring, comparing multiple institutes, and scheduling appointments in them. It is learning, knowledge development, and our panelists have had a great opportunity to connect with our extensive parent community. And our guest today for our Fish Tank segment is Dr. Shraddha Chauhan. Dr. Shraddha is a PhD in nutrition. She did her thesis on effect of canola oil consumption on the serum lipid profile of dyslipidemic adults from the Institute of Home Economics, University of Delhi. She's an MSc in Dietetics and Food Service Management from the Institute of Hotel Management, Catering and Nutrition, Pusa, New Delhi, and a BSc with specialization in Food and Nutrition from the Institute of Home Economics, University of Delhi. She's also got the Young Scientist Award in Community Nutrition at the 48th Annual National Conference of the Nutrition Society of India 2016, the ESPEN 2016 Travel Fellowship for poster presentation on clinical nutrition and metabolism held at Copenhagen, Denmark in 2016, Senior Research Fellowship by University Grants Commission, Junior Research Fellowship by UGC, Gold Medal by NHMCT for All India First Position in MSc. And her work experience is 6 years postdoctorate practicing clinical nutritionist. She's worked as a dietitian in Max Hospital, Saket, and she's a research officer in a non-profit organization. More recently, as nutrition database analyst with Twin Health and panel faculty for MSc, has been an external examiner for LEU, member of research advisory committee at the Manav Rachna International University, Faridabad. बहुत-बहुत स्वागत है आपका schools पे. On behalf of the CEO schools, Srinivas ji, who's making sure this program reaches out to millions. We have a lot of schools, residential schools joining us. Unfortunately, they're out for a visit today. But anyway, the link will be there for all to see. So my first question to you, ma'am, is Shraddha ji, what are your work experience strategies as a nutritionist? Because we all eat wrong, which is why I played out this video. We'll talk about milk later. How do you think India can become a healthier nation? This is the year of the millet, ma'am. Shraddha ji, yes. My video and audio clear? Yes, you're clear. I can't hear you. Have you heard the question, ma'am? Shraddha ji, I can't hear you. Yeah. Is India actually eating right, ma'am? Prasad, is there a technical snag? Prasad, is there a technical snag with Shraddha ji? Yes, tell us, is India actually eating right? Shraddha ma'am, we're going to ask you several questions like, is milk necessary for children? Can you hear me, ma'am? Children, just stay with us. We'll just get her back. 1 minute. She's trying to reconnect, yeah. So we'll answer all these questions for you children. What is the healthy way of eating? कितना नमक, कितनी चीनी, क्या जरूरी है, क्या नहीं? आप हमारे संग जरूर जुड़े रहें ताकि हम आपको बताते रहें. Is she able to join, Prasad? ये बड़ा ही पेचीदा सवाल है वैसे. देखिए कोविड, स्पेशली कोविड के बाद जो न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बढ़ बहुत गई है जनता में. लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हैं कि उनको क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज नहीं खानी चाहिए. हालांकि मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ा जिस तरीके से चीजें इजीली अवेलेबल हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं, और थोड़ा सा सोशल प्रेशर है, जैसे वीकेंड्स पे बाहर जाना है, आपको फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करना है. मुझे लगता है उन सब केसेस में ऐसा हो जाता है कि लोग ज्यादातर जो एक पाथ होता है सही खाने का, वहां से डिविएट कर जाते हैं. तो मुझे ये लगता है कि जहां तक इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन का सवाल है, वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास है, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट करने का टाइम आता है, मुझे लगता है वहां हम थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं और बेहद गलत चीजें खा लेते हैं अपनी डाइट में. हमें अपने बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए. क्या चीज आपके लिए अच्छी है, न्यूट्रिशन से भरी है, क्या नहीं है? मिलेट्स के बारे में क्या कहना चाहिए? दिस इज द ईयर ऑफ मिलेट्स. या हाँ जी, दिस इज फाइनली द ईयर ऑफ मिलेट्स. And I mean, I am so thrilled about this because Sadhguru's been saying millets for years. हाँ जी, I think millets, at least इंडिया में हम न्यूट्रिशनिस्ट की जो कम्युनिटी है, हम मिलेट्स के बारे में पिछले एटलीस्ट 2-3 साल से बात कर रहे हैं. स्पेशली जब से हमने देखा है कि ग्लूटेन की इंटॉलरेंस जो है, मतलब एलर्जी होना या लोगों को नेगेटिव इफेक्ट्स देखना व्हीट के कंजम्पशन से, जब से वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, तब से हम लोग मिलेट्स की बहुत बातें कर रहे हैं. और बच्चों को खासकर ये बताना कि आप व्हीट और राइस छोड़ के मिलेट्स पे आए, so you can live longer, because I'm finding so many heart attacks happening because of diabetes and
a whole lot of other issues. पता भी नहीं लगता and stroke हो जाता है. Only yesterday there was a stroke in this society for someone who's very hurt. But every day I used to see a Zomato or a Domino or some kind of a thing being ordered. So this is junk food. It's really, really not required. Sorry, my throat is very bad. Let us know about milk fortification. Is milk consumption really good? How do we break this myth, Shraddha ji? So मिल्क जो है, जब न्यूट्रिशन साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, हम लोग का ये मानना था कि मिल्क वाज द परफेक्ट फूड अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू मिनरल्स जैसे आयरन है या विटामिन सी है, कुछ ऐसे एक दो विटामिन और मिनरल्स के अलावा बाकी सब कुछ होता है मिल्क में। तो हम मिल्क को एक तरीके से कंप्लीट फूड मानते थे। लेकिन आज की डेट में मेजरली जो पेरेंट्स या मदर्स मेरे एक्सपीरियंस में जो स्ट्रगल करती हैं, वो स्ट्रगल करती है इस चीज पे कि बच्चे दूध की साइड से ही भागते हैं, जहां दूध का ग्लास आया बच्चा कमरे से बाहर। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है आपने, और जो लोग भी देख रहे हैं इस सेशन को, उनको मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि दूध पिलाना बच्चे को एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है। और ये मैं बात कर रही हूँ उन बच्चों के लिए जो ऊपर का खाना खा रहे हैं। ऑफकोर्स जब तक माँ का दूध मिल रहा है बच्चे को, वो देना चाहिए। और हाँ जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और WHO के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक की एज तक अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। अगर आप वीन ऑफ करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। 6 मंथ्स की एक्सक्लूसिव फीडिंग होनी चाहिए। टॉडलर्स जो हैं उनमें आपको मिल्क का इंटेक फोर्स करने की इन पर्टिकुलर बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो दूध नहीं पसंद करते हैं, पनीर पसंद करते हैं, दही पसंद करते हैं, या अगर छाछ पसंद करते हैं, तो आप उस तरीके की चीजें दे सकते हैं। दूध से आप कुछ हेल्दी चीजें बना सकते हैं, जैसे आप कम चीनी के चावल वाली खीर बना सकते हैं। रागी है, रागी जैसे ग्रेन्स जो है वो कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं, तो रागी इंक्लूड कर सकते हैं आप खाने में। चाहे आप थोड़े से गेहूं के आटे के साथ ही रागी मिला दें। बादाम जो होते हैं वो बहुत रिच होते हैं कैल्शियम में। तिल के सीड्स होते हैं। इनफैक्ट कुछ दालें भी हैं जैसे पूरी हरी मूंग दाल और सोयाबीन के तो जैसे मसाला पड़ता है दालों में, कहाँ उसमें न्यूट्रिशन रहेगा? नहीं, मसाले की देखिए, मसाला तो इनफैक्ट जो है इंडियन ट्रेडिशन में मसाले का जो पॉइंट है यूज करने का, वो ये है कि हम खाने को और डाइजेस्टेबल बनाएं। और जो खाने की दिक्कतें हैं, जैसे दालों से ज्यादातर गैस होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर तड़के में या तो जीरा डालते हैं या हींग डालते हैं। उससे वो जो इफेक्ट होता है दालों का, वो काउंटर हो जाता है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हम माफी चाहती हूँ रोकने के लिए। आपने अभी कहा कि दूध पीना जरूरी नहीं है, तो फोर्टिफाइड मिल्क क्या होता है, फोर्टिफाइड ऑयल क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, वो क्यों बेहतर हो? देखिए, फोर्टिफाइड मिल्क या जो भी जिस किसी भी आप खाने के पदार्थ की बात करें जिसको फोर्टिफाइड है, जो जिसके ऊपर F+ का एक सिंबल होता है FSSAI का, जिन खाने की चीजों पर वो सिंबल देखा जाता है, उन खाने की चीजों में जो नेचुरली अकरिंग न्यूट्रिशन है, उसके अलावा कुछ चीजें ऐड करी जाती हैं उसको और पौष्टिक बनाने के लिए, उसको और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। अब देखिए, फोर्टिफिकेशन इंडिया में बहुत वाइड स्केल पे हो रहा है। पहले हम लोगों ने सिर्फ सॉल्ट को आयोडीन से फोर्टिफाई किया था, और अब हम ऑयल और मिल्क तक पहुंच चुके हैं। राइस, हाँ जी, ऑयल, राइस, मिल्क तक पहुंच चुके हैं। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है अंडर न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने की। जैसा हमने अभी FSSAI की वीडियो में देखा कि अभी भी हमारे देश में मैल न्यूट्रिशन की बहुत प्रेवलेंस है, तो उसको टैकल करने के लिए हम जो फोर्टिफाइड फूड्स हैं वो अब मार्केट में लाए गए हैं। हाउएवर रिसर्च विंग जो है वो थोड़ा इस थॉट पे डिवाइडेड है कि जहां पर फोर्टिफाइड फूड्स जो है वो मैल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकते हैं, वहां पे ये भी हो सकता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी फुलफिल हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि आपका थोड़ा एक्सेस कंजम्पशन भी हो। लेकिन जब हम पॉपुलेशन लेवल की बात करते हैं, सबका इनटेक और अब्जॉर्प्शन अलग होता है। मतलब आप और मैं हो सकता है सेम अमाउंट ऑफ कैल्शियम खाएं दिन में, लेकिन आप शायद ज्यादा अब्जॉर्ब करें और मैं कम अब्जॉर्ब। तो ये सारी चीजें जो है लाई गई है पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही, लेकिन आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं या जैसे आप रेगुलर ब्लड चेक्स वगैरह कराते हैं, उन सब चीजों के बेसिस पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको फोर्टिफाइड खाने पे जाना की जरूरत है या आपको नॉर्मल दूध पे जाने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। अब चीनी की बात करिए। मुझे खुद मन करता है चीनी खाने का, मतलब आई गेट चक्कर सी फीलिंग आती है कभी कभी दिन में। सो आई हैव ईदर ग्लूकॉन-डी और समथिंग। खाना खाना भूल जाती हूँ मैं अक्सर, इतनी बिजी चलती हूँ। तो व्हाई शुगर इनटेक हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन, अगर बच्चों की बात करें, बिकॉज़ बच्चे जुड़े हैं। हाँ जी, देखिए, शुगर और सॉल्ट, इनके ये
दो जो चीजें हैं, जो खाने में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये एडिक्शन क्रिएट करते हैं। यानी एक बार, जैसे वो इंग्लिश में एक सेइंग है, नो वन कैन हैव जस्ट वन। तो एक बार अगर बच्चे के रूटीन में जो है अगर शुगर कंजम्पशन आ जाता है, और वो भी काफी हाई लेवल का शुगर कंजम्पशन आ जाता है, तो एक तो वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा उछल कूद होती है, ज्यादा भाग दौड़ होती है, तो उस टाइम पे अगर उनका शुगर का कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा भी है, तो वो जो कैलोरीज हैं वो सारी स्पेंड हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो न्यूट्रिशियस है, बट हाँ ये है कि एटलीस्ट कैलोरी का बैलेंस बन जाता है। लेकिन अगर ये हैबिट बचपन में फॉर्म हो जाए और फिर अडल्टहुड तक एक्सटेंड हो जाए, तो आप सोचिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल जहाँ पे इंसान 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम कर रहा है, अगर वो अपनी शुगर के इनटेक की हैबिट कंटिन्यू करेगा, तो इट विल ओनली लीड टू ओबेसिटी, वजन बढ़ेगा और जो बीमारियां हैं वो होने का रिस्क रहेगा। पर्टिकुलरली बच्चों में ये देखा जाता है कि चीनी के इनटेक से थोड़ा हाइपर एक्टिविटी भी होती है। अगर आपने देखा होगा कभी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में या घरों में आपने देखा होगा, अगर देर रात को अगर बच्चे टॉफी या चॉकलेट खाते हैं तो टाइम से सोते नहीं है, भागते रहते हैं। तो वो क्या होता है, शुगर रश होता है, क्योंकि सिंपल शुगर्स जो है वो जैसे आपने खाई, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो एस्केलेट हो जाता है, चाहे वो बच्चों में हो चाहे वो अडल्ट्स में। तो क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के भी चांसेस होते हैं। और आजकल ये देखा जा रहा है कि जैसे पहले जो है टाइप 1 डायबिटीज, जो कि ज्यादातर बच्चों में, यंग लोगों में देखी जाती है, वो उसकी इंसिडेंस पहले कम हुआ करती थी। हम ज्यादातर टाइप 2 के केसेस देखते थे, जो 30-35 साल से ऊपर के लोगों में देखी जाती है। लेकिन अब टाइप 1 डायबिटीज स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो इसीलिए हम और कॉशियस हैं और हम और एजुकेट करना चाहते हैं कि शुगर का इंटेक जो है वो घर में कर्ब होना चाहिए, और हमको ये हैबिट्स इनकलकेट भी करनी पड़ेगी बच्चों में। अब सवाल है हरी सब्जियों का। हाउ डू यू मेक चिल्ड्रन ईट ग्रीन वेजिटेबल्स? करेला, तोरी, लौकी, देखिए, जहां तक सब्जियों की बात आती है, हम लोग 3 वाइड ग्रुप्स के हिसाब से सब्जियों को देखते हैं। एक तो होती है हरी पत्तेदार सब्जियां, एक होती है जो हमारी जड़ वाली सब्जियां होती है, आलू है, प्याज है, अरबी है, शकरकंदी है, हाँ अरबी है, और तीसरी होती है जिनको हम अदर वेजिटेबल्स बोलते हैं, जिसमें टमाटर, बीन्स, मटर, ये सब चीजें आती है। जहां तक हरी पत्तेदार सब्जियों का सवाल है, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, क्योंकि अब भले ही हमें जैसे पालक है वो 12 महीने मिल जाता है, लेकिन जो सर्दियों में जो प्रोड्यूस आती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, वो बहुत पौष्टिक होती है, क्योंकि वो नेचुरली ग्रोन हो, तो उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अगर आपको अपने बच्चे के खाने में मिलाना है, तो ये आपको छुपाना पड़ेगा। हाँ। जैसे आटे में आपने प्यूरी बना के डाल दी, हरी पूरी बना दी, बीट रूट और पालक दोनों की प्यूरी डाल दी, तो रंग बिरंगी इडली बन गई। गाजर भी डाल सकते। जहां तक दूसरी सब्जियों का है, मेरा मानना ये है, अगर आपका बच्चा लौकी नहीं खाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वो बीन्स खा लेता है तो आप वो खिलाइए, उसे फोर्स मत कीजिए। इसे पूरा तेल में बनाने का क्या वो है, यू नो, आई थिंक इट शुड बी वेरी लेस ऑयल, सॉटे करके उसको कैसे बच्चों को बताया जाए दैट दिस इज एक्चुअली न्यूट्रिशन। तो जला के टमाटर लहसुन डाल के, यू नो। हाँ, उस केस में देखिए पोर्शन कंट्रोल जरूरी है। बच्चे तो कुकिंग की प्रोसेस को इतना समझते नहीं है, तो ये रहेगा मम्मियों के हाथों में कि मम्मी आगे अगर खुद खाना बनाती हैं तो वो मम्मी कुछ नहीं करती, आजकल मेड्स के हाथों में रहता है। अगर मेड्स के हाथों में, तो देखिए मेरी सिंपल ट्रिक होती है, जो मैं बच्चों को नहीं, मैं अडल्ट्स को भी बताऊँ। यदि आपके घर में कोई कुक आपके लिए काम कर रहा है, तो आपको करनी पड़ेगी राशनिंग। राशनिंग कैसे होगी कि अगर आप जैसे यूजुअली जब लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं, तो मैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एक टोटल ऑयल इनटेक बता देती हूँ कि आपको दिन में 30 ml के करीब ही तेल यूज करना है सारी मील्स में। तो आप वो उतना तेल निकाल के साइड में रखिए। अगर एक बंदे के लिए है तो 30 ml, 2 बंदे के लिए तो 60 ml, और उतना ये कर लिया, ठीक है, मैं मानती हूँ। उसके बाद बीच में आपका भूख लगी, 11 बजे आपने 2 समोसे खा लिए। नहीं, तो ये तो फिर देखिए, ये तो ये तो वही बात हो गई। मैं कोई भी जो भी आपको गाइड करा, यही चीज से हमने बात शुरू करी थी। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन सबको है, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी जाते हैं, आप जिम भी जाते हैं, आप एनुअल मेंबरशिप लीजिए, आप कोई 1.5 लाख वाला ट्रेनर हायर कीजिए, जब तक वो अंदर से आपके खुद विल पावर नहीं आएगी और आप खुद वो डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप कितना ही पैसा
खर्च कर लीजिए। अगर आप कोई मान लीजिए लिपोसक्शन भी करा लेता है और उसके बाद भी अगर कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता है, आदतें नहीं सुधारता है, तो वो भी फेल ही होगा। तो ये what about junk food? How harmful is it? This Maggie, this pizza, all of this. I mean, they are eating, I don't know how many calories a day. देखिए पिज्जा की तो मैं आपको सिंपल बात बताऊं, डोमिनोज का अगर आप मीडियम साइज पिज्जा लेते हैं या किसी भी पिज्जा आउटफिट का मीडियम साइज पिज्जा लेते हैं, इट इज स्ट्रेट अवे 1000 कैलोरीज। और हम दिन में और दिन में अगर कोई सही वेट वाला इंडिविजुअल है, मतलब अगर कोई ओबीस नहीं है, तो मैक्सिमम उस इंडिविजुअल को लगभग 1800 कैलोरीज खानी होती है। तो आप सोचिए 1800 कैलोरीज जो आपकी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और प्रॉब्ली एक ही बार में सटक लिया, ठीक ना। तो जंक फूड का ये है स्कैरी इशू। एक तो एडिक्टिव है, खाते जाते हैं पता नहीं चलता है, और फिर कैलोरी वैलोरी हमें कुछ पता नहीं होती है। मेरे को भी एक्चुअली सिर्फ अपनी पीएचडी के दौरान पता चला कि जब लोग वीकेंड मीडियम पिज्जा खा रहे थे, तो आई रियलाइज कि वीकेंड पे कंजम्पशन 2500-3000 कैलोरीज तक जा रहा है, क्योंकि पिज्जा उसके बाद हम पागलों की तरह जिमिंग कर रहे हैं, कोई फायदा थोड़ी है। हाँ, तो जो 5 दिन मेहनत करी उस पे बिल्कुल पानी फेर दिया हमने वीकेंड। जंक फूड का दिक्कत यही, सबसे बड़ी दिक्कत जंक फूड की ये है, आप कैलोरीज छोड़िए, न्यूट्रिशन भी अगर आप देखिए कि चलिए आपको विटामिन नहीं देता, मिनरल नहीं देता, प्रोटीन नहीं देता, वो भी छोड़िए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो चीज जंक फूड देता है, आप रिफाइंड शुगर्स, ज्यादा नमक, ज्यादा चीनी, पाम ऑयल या इंडस्ट्रियल लेवल के ऑयल, जो इन सब चीजों के लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से और कुछ नहीं होगा, बीमारियों के दरवाजे खुल जाते। बच्चे आज की डेट में आप देखेंगे छोटी एज में बहुत ज्यादा एक्सेस वेट हो गया है, आउटडोर एक्टिविटी कोई नहीं है, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड बच्चे ज्यादा इंटरनेट से बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, वेरी ओबीज, शक्लें ऐसी होती हैं बच्चों की, इतनी मोटी। तो वो है, तो जंक फूड का मेजरली यही प्रॉब्लम है कि जो वो देता है वो बहुत हार्मफुल है, जो नहीं देता वो तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जंक फूड में लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली जंक फूड फैला इतना ज्यादा है अब हमारी सोसाइटी में, इतना डीप रूटेड है कि अगर मैंने घर में अपने बच्चे को बोल दिया कि मेरे घर में तुम्हें कोई जंक फूड नहीं मिलेगा, मैं कभी बनाऊंगी भी नहीं। मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, वो टिफिन में दूसरे बच्चे के टिफिन में फ्रेंच फ्राइज देख लेगा, चिप्स देख लेगा, कुरकुरे देख लेगा, तो आप क्या करेंगे? अब पेरेंट्स के साथ ये होता है, किसी चीज को आप मना करेंगे, बच्चा उतना ही उसकी तरफ भागता है, जिसको हम बोलते हैं फॉरबिडन फ्रूट सिंड्रोम। जितना उसको आप मना करेंगे चिप्स नहीं खाना, कुरकुरे नहीं खाना, उतना ही वो उसकी तरफ भागेगा। तो जंक फूड को टैकल करने के कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो बर्डन है वो मदर्स पे ही आता है। जैसे कि सबसे बड़ी सोल्यूशन जो होता है जंक फूड अवॉइड करने का, वो है कि आप घर में जंक फूड रखें ही ना। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, ग्रोसरी लेने गए, 4-5 पैकेट चिप्स के लिए, मेहमानों के लिए, अपने लिए, या कभी बच्चा रात रो के लेते हैं भाई बाजार से। माय डॉटर किल्स मी इफ आई कम बैक विदाउट गेटिंग दोस क्रिस्पी, आई डोंट नो व्हाट, एंड दोस बिग मंचीज इन अ जार। फूल जाती, get me this, get me that every day. How did you come home without getting me this? तो लगता है कि स्पेशली फॉर वर्किंग पेरेंट्स बच्चे खुश हो जाए, स्माइल कर दे। जहर खा रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ जी, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली, 2 चीजें हैं। एक तो ना जो करंट जनरेशन है बहुत स्मार्ट है, एंड मैनिपुलेशन, इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत कर लेते हैं। ऑल्सो क्योंकि हम लोग हेक्टिक लाइव्स लीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी गिल्ट रहता है कि हम बच्चे को उतना टाइम नहीं देते हैं, बच्चा हमारा अकेले रह जाता है, तो हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं विद जंक फूड या जो भी उनका फेवरेट होता है, विच इज यूजुअली जंक। तो हमको यही चीज को अवॉइड करना है। जंक फूड को किसी भी तरीके का रिवॉर्ड या प्राइज नहीं बनाना है, इनफैक्ट उसको रेगुलर रूटीन में इंक्लूड करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मेरे बच्चे को चॉकलेट का शौक है, तो आफ्टर एवरी मील आई विल गिव माई किड 1 or 2 पीसेस ऑफ चॉकलेट। तो ये क्या हो गया, ये रूटीन बन गया मेरा कि मैं लंच के बाद मुझे 2 क्यूब चॉकलेट के मिलते हैं, एंड इट इज इररिस्पेक्टिव। बच्चा अच्छा बच्चा रहा है, उसने कोई गलती करी है, आप उसे सजा देना चाहते हैं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि होमवर्क नहीं किया तो आज तुम्हें चॉकलेट नहीं मिलेगी, या होमवर्क कर लिया तो आज 4 चॉकलेट मिलेगी, वो नहीं कर। पोर्शन कंट्रोल करना है हमेशा। भले ही आपके पास पूरी चॉकलेट है, आपने देने 2 ही क्यूब्स हैं। और साथ में साथ जो है बच्चों को आजकल, क्योंकि एज आई सेड जनरेशन बहुत स्मार्ट है, जितना हो सके बच्चों को अप्रोच कीजिए विद लॉजिक। जैसे उनको समझाइए, जैसे हम पहले बोला करते थे कि पॉपाय है वो स्पिनच खाता है, देखो उसके कितने बड़े बड़े मसल्स हैं। यू नो, रादर देन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड, वी शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ गुड फूड। जैसे बच्चों को बताइए कि देखो गाजर खाओगे तो आपकी आंखें तेज होंगी, आंखें तेज होंगी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। या अगर उनकी हॉबी है कि वो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में आप ज्यादा अच्छे से जहाज चलाना चाहते हैं, हाँ, जहाँ आपको ज्यादा
ज्यादा पावर मिलेगी, उस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना है, जिस तरीके से भी आपको लगता है। हर बच्चा डिफरेंट होता है, आपको लगता है आपका बच्चा जिस तरीके से समझेगा उस तरीके से समझाएं हमने। What are your examples of healthy snacking? We're running out of time. हाँ जी, हेल्दी स्नैकिंग के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला चॉकलेट अगर है तो आप घर में जो है बेसिक जो चॉकलेट होती है, प्योर चॉकलेट जो होती है वो ले सकते हैं, और उसमें अपने हिसाब से अपने लेवल का मीठा डाल सकते हैं, जैसे जैगरी पाउडर डाल दें, नट्स उस चॉकलेट में आप कोट कर सकते हैं। ऑल्सो बनाना जो है, बनाना अगर आप स्प्लिट करें हाफ में, उसको आप चॉकलेट से कोट कर सकते हैं, उसके ऊपर पीनट्स डाल सकते हैं। काफी सारे आजकल रेसिपीज अवेलेबल है योगर्ट पॉप्सिकल्स की, जहाँ पे योगर्ट के साथ आप कोई भी फ्रूट को प्यूरी करके और जो आपके आइसक्रीम मोल्ड्स होते हैं आप उसमें जमा सकते हैं। और जहां तक नमकीन चीजों का सवाल है, आजकल एयर फ्रायर्स बहुत कॉमन हो गए हैं घर में। इसमें थोड़ा ये है कि मेहनत लगेगी, लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट अगर मदर्स के पास वीकेंड पे टाइम है या अगर उनके घर में हेल्प है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रोक के आप वीकेंड पे एक स्टॉक प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपको नेक्स्ट वीकेंड तक लास्ट करेगा। तो इस केस में इवन जो मदर्स वर्क कर रही हैं, अगर वो ऑफिस चली जा रही हैं, पीछे से कोई और बच्चे का ध्यान रख रहा है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि फ्रिज में ये सामान या ये अलमारी में ये सामान बना रखा है, और आप जो है ये चीज बच्चे को सर्व कर सकते हैं। साथ ही में इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम स्टॉकिंग कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ऑप्टिमाइज करें स्टॉकिंग को, यानी जो भी शेल्व्स आसानी से रीच आउट हो सकते हैं, जो शेल्व्स आराम से खोल के शायद बच्चा खुद भी खाने की चीज निकाल सकता है, उन सब चीजों में हमेशा हेल्दी चीजें रखें। ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजों के अगर पैकेट्स भी ला रहे हैं हम, जैसे डिहाइड्रेटेड फ्रूट होता है या ड्राइड फ्रूट्स हैं, इन सब चीजों के अगर ज्यादा प्रेजेंस होगी किचन में, तो लाइकलीहुड है कि आपका बच्चा या आपके बच्चे को जो भी स्नैक प्रोवाइड कर रहा है वो हेल्दी स्नैक ही पिकअप करेगा। तो जैसा पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, घर में लाना नहीं है जंक फूड। अगर कभी है कि बच्चा मांग रहा है तो बस एक ही पैकेट मंगाए दुकान से, वो भी पूरा पैकेट सर्व ना करें। बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड कोई अट्रैक्टिव सा बोल रखें जो देखने में बड़ा हो लेकिन उसमें क्वांटिटी कम आती है। तो सिमिलरली आप ग्लासेस में भी कर सकते हैं, कट वर्क वाले ग्लासेस में जिसमें बेस थोड़ा मोटा हो ताकि टोटल वॉल्यूम जो है वो कम आए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आप ट्राई करके देख सकते हैं घर में। ऑफ कोर्स कई बार हो सकता है कि योर चिल्ड्रन आर स्मार्टर देन यू एंड दे फिगर आउट आप क्या कर रहे हैं, लेकिन अगेन आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि एक पैकेट एक बार में नहीं 3 दिन में फिनिश करना है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ स्नैक्स के एग्जांपल्स हैं जो हम दे सकते हैं। Absolutely. Another thing is, how do you inculcate healthy habits without forcing them? Lastly, Yeah. and enough protein. Protein that's also very very important. देखिए, हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करने का सिंपल सोल्यूशन होता है रोल मॉडलिंग। आजकल स्कूल्स भी काफी कॉन्शियस हैं, तो अगर आपके बच्चे के स्कूल में उनको मील भी मिल रही है तो मोस्टली दे आल्सो सर्व स्टफ व्हिच इज हेल्दी। एजुकेट भी किया जाता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है पैनल पे, तो वहां पे तो स्कूल अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है। आप जब घर पे रोल मॉडलिंग करें और जैसा मैंने बताया घर में वो चीजें ही ना लाएं जो कि जो है हार्मफुल होती हैं हेल्थ के लिए, अगर स्नैकिंग के टाइम पे कंज्यूम की जाए, और जब लाए भी तो उनका पोर्शन कंट्रोल करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों को इन्वॉल्व करें डिसीजन मेकिंग में। अगर आप शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपको बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके लिए कुछ चिप्स का पैकेट या कुछ लेकर आइए। आप एकदम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। आप चिप्स का पैकेट लाइए लेकिन छोटा वाला लाइए, 20 रुपए वाला लाइए, 40-50 वाला नहीं लाइए। तो ये स्ट्रैटेजीज हैं। ऑफ कोर्स रोल मॉडलिंग और कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों को एक्सपोजर इतना है टू इनकलकेट गुड हैबिट। जहां तक प्रोटीन इंटेक का सवाल है, प्रोटीन इंटेक बहुत आसानी से मीट हो सकता है अगर आप अपने बच्चे की मेन मील में एटलीस्ट एक प्रोटीन का सोर्स रखते हैं। वो क्या सोर्सेज होंगे? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग हो सकता है, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है। इसके अलावा आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, अगर वो फोर्टिफाइड हुए, वेल एंड गुड। दालें हैं, सोयाबीन की प्रोडक्ट्स हैं, सोयाबीन दाल खुद होती है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है सब्जी के फॉर्म में खा लेता है, इट्स फाइन, नहीं तो उसको आप स्टफ कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन अगर बढ़ाना है तो आप आटे में थोड़ा सा चने का आटा मिला लें, जैसे गर्मियों में आप सत्तू मिला सकते हैं। इसी तरीके से दाल जो है आटे में गूंथ के आप दाल का पराठा बना सकते हैं। बिल्कुल तो अगर आप बेसिकली हर मील में एक प्रोटीन सोर्स इंक्लूड करेंगे तो आपके बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट आसानी से मीटती है और आपको एक्सटर्नली सप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। योगा का जाते जाते बता दीजिए, मेडिटेशन, योगा और सप्लीमेंट्स का आजकल बहुत टाइम आ गया है। पता नहीं लोग सप्लीमेंट्स विटामिन सी वगैरह खूब लेते हैं, तो क्या ये जरूरी है बच्चों को
देने या इनका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है? देखिए, जहां तक विटामिन सी सप्लीमेंट्स का सवाल है, विटामिन सी बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, तो इसकी कोई एक्सेस नहीं हो सकी क्योंकि हमारी बॉडी रेगुलरली यूरिन प्रोड्यूस करती है, हम एक्सक्रीट करते हैं, तो जो भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एटलीस्ट अगर वो एक्सेस में होते हैं तो वो निकल जाते हैं। लेकिन जैसे विटामिन डी है, आजकल बहुत पॉपुलर है कि विटामिन डी की गमीज दी जाती हैं, इन सब चीजों में ध्यान रखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी सिर्फ सनलाइट एक्सपोजर और मशरूम्स जैसी कुछ खाने की चीजों से मिल सकता है, आप जिसका इंटेक इतना वाइड नहीं होता है, मीट हो जाए। हम सप्लीमेंट देते हैं लेकिन एक कॉशियस चेक रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी एटलीस्ट फैट सॉल्युबल विटामिन की या किसी मिनरल की जो है टॉक्सिसिटी ना हो। तो सप्लीमेंट जब भी दें हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दें, और साथ साथ जो है ध्यान रखें कि कभी भी एक्सेस ना हो रही हो, और इसके लिए आपको आपके डॉक्टर गाइड कर सकते। लास्टली योगा और मेडिटेशन मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज की जनरेशन के लिए जो स्कूल एज में ही इतने स्ट्रेसर्स और स्टिमुलाई हैंडल करती है। आप देखिए बैग्स बच्चों के वजन से ज्यादा हैवी है, पढ़ाई का प्रेशर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का प्रेशर, प्रोजेक्ट्स का प्रेशर, स्कूल में परफॉर्मेंसेस हो रही है, जॉब का प्रेशर, जॉब रही, रोजगार है ही नहीं। मेडिटेशन। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ श्रद्धा जी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स विद अस। सो लेट Thank अस you very रीच much. ईट राइट इंडिया एंड ऑन बिहाफ ऑफ द CEO of schools, Srinivas ji, I extend a very warm gratitude to all of you who are watching this program. Many more to come. Thank you for watching. Namaskar. Thank you so much. Namaskar.